Welcome students, and today we'll discuss the question answer of chapter 2, human migration. So come to the first number A, take the correct option. 1. What is regular movement of people from one place to another known as? So that there are three options: A, migration, B, traveling, and C is movement. So the answer is when people move from regular movement of people from one place to another, that is migration. A is the correct answer. Then 2. People were unable to travel in olden times due to olden time पे लोग क्यों एक जगह से एक जगह अनेबल थे मूवमेंट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए. There are three answers. A, miles. B, three options. B, lack of money. Third option is lack of transportation. So in the olden times, what is the reason? What is the main reason? The main reason is lack of transportations. Transportations की facility नहीं था, so that वो लोग unable to travel in olden times. Hello. And what is migration? Due to natural disaster known as. जो माइग्रेशन नेचुरल डिजास्टर से होता है उसको क्या बोला जाता है? सो दैट इज फोर्स माइग्रेशन, बी वॉलंटरी माइग्रेशन एंड सीजनल माइग्रेशन. तो सीजनल माइग्रेशन और वॉलंटरी माइग्रेशन नहीं है, इसका आंसर होगा ए, फोर्स माइग्रेशन. क्योंकि ये जो लोग होते हैं नेचुरल डिजास्टर के टाइम फोर्स माइग्रेशन के लिए फोर्स हो जाते हैं, एक जगह से एक जगह माइग्रेट करने के लिए फोर्स होते हैं. देन कम टू द फोर्थ वन. फोर्थ, growing crops in a new piece of land once the fertility gets exhausted is then and A, seasonal agriculture, B, shifting agriculture, and C, commercial agriculture. So that the answer is shifting agriculture. When growing crops in a new piece of land once the fertility gets exhausted, what happened when the people were habituated in agriculture in a one particular land, and when the fertility gets exhausted, एक जगह से उनका जो उर्वरता फर्टिलिटी वेस्ट होता है या नष्ट होता है, उसके बाद तो लोग क्या करते हैं, एक नए जगह जाके एक नया लैंड पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट ग्रोइंग क्रॉप्स इन ए न्यू पीस ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. एक जगह से और एक जगह वो लोग शिफ्ट होकर नया जमीन पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1, माइग्रेशन. सेकेंड, lack of transportation. Third, forced migration. And the fourth one is shifting agriculture. Next, question number B, fill in the blanks. And there is a help box, and there are 4 or 5 answers, 5 options. You have help box: voluntary, chain, limited, mankind, and Kashmir. So come to the question number 1. Dash and migration have been linked to each other since ancient times. Ancient time से migration और क्या है जो लोग के साथ एक दूसरे के साथ ancient time से जुड़ा हुआ है, लिंक है, linked to each other. That is the mankind. This is mankind. So mankind and migration have been linked to each other since ancient times. Second one is dash. Migration is when people move to another place on their own wish. So that is voluntary migration. Yeah, we said on their here is the one point, that is the refer to the answer, that is migration is when people move to another place on their own wish. On their own wish, अपने इच्छा से एक जगह से और एक जगह जब माइग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी माइग्रेशन करेंगे. इच्छाधीन है उनका, वो वॉलंटरी माइग्रेशन होगा. ओके, देन कम टू द थर्ड वन. इन सितंबर 2014 डैश वैली सॉ डिवेस्टेटिंग फ्लड. बाढ़ आया था किस जगह पे? इन सितंबर 2014 कौन सा वैली पे? एक बहुत बड़ा भयंकर बाढ़ आया था. दैट इज द कम टू द पॉइंट, एंड आंसर इज कश्मीर. कश्मीर, दैट इज द आंसर. So in September 2014, Kashmir Valley saw devastating flood. Fourth, migration is like a dash.
व्हाट इज माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन लाइक ए चेन, माइग्रेशन एक चेन प्रोसेस होता है। जैसे कि कुछ लोग एक जगह से एक जगह माइग्रेट करते हैं, वो जो जिस हिसाब से मैसेज करेंगे कि ये जगह अच्छा है, यहाँ अच्छा इनकम है, सो दैट बाकी लोग भी उस जगह को माइग्रेट करते हैं। सो दिस इज ए चेन प्रोसेस। एंड फिफ्थ वन, इन अर्लियर टाइम्स माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन ए डैश एरिया। अर्लियर टाइम पे माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन ए लिमिटेड एरिया, लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन नहीं था उस टाइम पे। द अर्लियर टाइम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं था, सो दैट एक लिमिटेड एरिया पे वो लोग माइग्रेशन करते थे। ओके, द फर्स्ट वन इज कम टू रिपीट द आंसर्स। फर्स्ट वन मैनकाइंड, सेकंड वॉलंटरी, थर्ड वन इज कश्मीर, fourth one chain, and the fifth answer is limited. And then C, state whether true or false, the statement are true or false, and अब डिस्कशन करते हैं कि ये ट्रू की false है। The satellite began only when the man became a food producer. Okay, जब भी एंशिएंट जो ओल्ड पर्सन थे एंशिएंट पे पर्सन द मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। का फूड प्रोड्यूसर जब हो गए वो क्या कि एक जगह पे सेट होके रहेंगे, दैट इज सेटल लाइफ मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। पहले से वो क्या थे, एक सर्चिंग हंटर एंड सर्चर था, फूड कलेक्ट करता था उस टाइम, कलेक्टिंग द फूड। बट अब जब सेटल लाइफ हो गया, कब सेटल लाइफ हुआ, जब एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एंड ही बिकेम ए मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर होने के बाद एक जगह पे रहना स्टार्ट करते हैं, सो दैट ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज ट्रू। सेकंड वन, पीपल वर स्केयर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम्स। यस, इट इज ट्रू। एंशिएंट टाइम पे क्या करते थे, ओल्डन टाइम्स लोग डरते थे, एक दूर जगह जाने में डरते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं था, सेकंड उनका कुछ ऐसे बिलीफ था जैसे दूर जगह जाने पे वो डरते थे, ये ट्रू है। And third one is the laborers move to cities for jobs at better wages. Yes, जो माइग्रेशन होते हैं रियली लोग जो है गांव के लोग होते हैं या लेबरर्स ग्रुप जो होते हैं एक सिटी एरिया इसलिए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया पे जॉब एट बेटर वेजेस के लिए, ट्रू। एंड फोर्थ वन, माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। यस, ये ट्रू है, माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल, ट्रू। एंड माइग्रेंट्स आर नेवर हैप्पी, ये कुछ हद तक सही नहीं है। जैसे कि ऑल द माइग्रेंट्स आर नेवर हैप्पी, माइग्रेंट्स आर नेवर हैप्पी, माइग्रेंट्स हैप्पी होते हैं बट कुछ ही बस नहीं हो पाते हैं, बट जो एवरेज होते हैं माइग्रेंट्स बिकम हैप्पी। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, माइग्रेंट्स आर नेवर हैप्पी। माइग्रेंट्स हैप्पी होते हैं नई जगह पे जाके, नया माहौल पे रहना, इनकम जॉब एंड बेटर वेजेस मिलता है, सो दैट वो माइग्रेंट हैप्पी होता है। सो ये स्टेटमेंट नेवर हैप्पी लिखा है, इसके लिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, डी, आंसर ब्रीफली। बट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइग्रेशन। ये जो टर्म है माइग्रेशन का मीनिंग अब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन का अर्थ क्या है। आंसर, माइग्रेशन मीन्स ए सिस्टमेटिक और रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल from one place to another, and migration may occur within the country as well as outside the country. ये माइग्रेशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक और रेगुलर मूवमेंट है लोगों का, जो पीपल का एक रेगुलर मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से और एक जगह का मूवमेंट होता है। अब इससे क्या होता है, माइग्रेशन में occur within, माइग्रेशन हो सकता है अपने एक ही देश पे भी होगा, एक ही देश के अंदर भी हो सकता है, एज वेल एज आउटसाइड अदर कंट्रीज को भी लोग माइग्रेट करते हैं। ओके, दिस इज migration. And then second one is what is shifting agriculture? Shifting agriculture, answer, when man became a food producer, जब जो एंशिएंट एज पे जो स्टार्टिंग से लोग क्या किए, फूड प्रोड्यूसर बना, एग्रीकल्चर स्टार्टिंग किया, when man became a food producer, and when he started producing food or started agriculture, then he became a food producer. He started growing crops on piece of land, एक लैंड पे क्रॉप्स और वो क्या करना है, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। टिल कब तक किया हो,
टिल द सॉइल वाज फर्टाइल, जब तक वो मिट्टी उर्वरता नहीं खोया था या फिर उर्वर था उतने दिन तक वो उसी सेम जमीन पे उसका एग्रीकल्चर करता रहा, कंटिन्यू किया। बट टाइम क्या हुआ, उसका जो फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या करता था, देन ही मूव टू न्यू प्लेस ऑफ लैंड, नया जमीन ढूंढा और उस जगह पे जाके वो सेटल हो गया, उस जमीन पे अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। सो दैट एक जगह से एक लैंड को छोड़ के न्यू लैंड पे जाके एग्रीकल्चर करना ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स was known as shifting crops. Okay, then third one is name the two types of forced migration. दो टाइप का फोर्स माइग्रेशन क्यों होता है और क्या क्या है। वन, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स माइग्रेशन। क्या होता है फोर्स माइग्रेशन, जो फोर्स होते हैं, दो टाइप से फोर्स होते हैं, लोग एक माइग्रेशन करने के लिए मजबूर होते हैं। वन इज द नेचुरल वन। नेचुरल क्या है, जो प्रकृति से होता है, जैसे कि माइग्रेशन कॉज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक विपर्य होता है। उसी से रिलेटेड जो भी माइग्रेशन होता है लाइक द फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये सब से क्या होता है, लोग का भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो लोग को एक जगह से एक जगह माइग्रेट करना ही पड़ता है, ये नेचुरल है। एंड सेकंड वन इज मैन मेड, ह्यूमन मेड माइग्रेशन। क्या होता है, माइग्रेशन कॉज ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर लाइक फायर एंड वॉर। एक जगह पे आग लग गया, वार हो गया, लड़ाई होता है एक प्लेन के बीच में या कुछ ग्रुप्स के में उनका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, उससे क्या होता है उस जगह को छोड़ के एक सेफ प्लेस, सिक्योर प्लेस पे लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट द आंसर्स आर नेचुरल माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल माइग्रेशन एंड सेकंड वन इज मैन मेड माइग्रेशन। नेचुरल माइग्रेशन का एग्जाम्पल क्या है, फ्लड है, अर्थक्वेक होता है। एंड सेकंड मैन मेड माइग्रेशन का जो एग्जाम्पल्स है फायर, वार, ये सब है मैन मेड माइग्रेशन का एग्जाम्पल्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन, नेम द रिवर व्हिच कॉज्ड फ्लड इन कश्मीर इन द ईयर 2014। 2014 में कौन सा रिवर पे कश्मीर वैली पे बाढ़ आया था, एक डिवेस्टिंग हुआ था, डिवेस्टेटिंग हुआ था। सो दैट द रिवर झेलम, इट इज द रिवर झेलम कॉज्ड फ्लड्स इन कश्मीर इन द ईयर 2014। तो उस नदी का नाम क्या है, झेलम। झेलम नदी पे ही बाढ़ आया था। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेम द टू थिंग्स दैट चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल। लोगों का जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग था, जो चेंजेस नहीं होता, पुराने विचार था, वो कैसे चेंजेस हुआ। फर्स्ट आंसर इज you have to give two things, 2 point देना है आपको। वन, फर्स्ट वन इज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। जब इंग्लिश आए, द ब्रिटिश पीपल कम टू इंडिया एंड आफ्टर दैट एंड ऑल्सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। इसके बाद क्या हुआ, लोगों का चेंजेस हुआ, थॉट में चेंजेस हुआ, जो थिंकिंग था वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग था, वो चेंजेस हुआ। एंड सेकंड वन है, उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश आने के बाद ही इन्फ्लुएंस हो, क्यों चेंजेस हुआ, ब्रिटिश आने के बाद ही इंडिया में एजुकेशन का स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड एजुकेशन हियर प्रॉपरली। सो दैट बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, एक तार्किक विचार जो लोगों के मन में आया, उसके बाद एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हुआ। सो दैट ये सब रीजन्स है, ये बहुत रीजन्स जो है, एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज एंड चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल। द लास्ट क्वेश्चन E, answer the following questions, briefly highlight the 3 type of migration। इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, 3 टाइप का माइग्रेशन जो होता है उसके ऊपर विचार करना है। आंसर, the 3 types of migration are first one is the voluntary migration, second one is the seasonal migration and third one is forced migration। So that come to the first one, A, the voluntary migration। voluntary migration क्या होता है, this type of migration occurs when people move to another place on their own wish or choice। own wish और choice पे अगर आदमी एक जगह से एक जगह मूवमेंट करता है, अदर जगह मूवमेंट करता है या फिर माइग्रेट करता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी माइग्रेशन। इच्छाधीन है, अपने इच्छा पे, विश पे, चॉइस पे, वो पसंद के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। इट में भी फॉर क्यों करते हैं वो लोग, फॉर बेटर जॉब,
एक अच्छा जॉब के लिए करते हैं या फिर बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कुछ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए वो माइग्रेट करते हैं। सेकेंड वन, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है? एक सीजन के टाइम पे ही जो माइग्रेशन होता है, जैसे दिस इज स्पेशली अकॉर्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, एंड दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन टेक प्लेस व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ड्यूरिंग सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम। आप बीज बोए के टाइम, जब बोया जाता है उसी टाइम, या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम फसल कटता है उस टाइम जो माइग्रेशन होता है। लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं, स्पेशली दिस ऑकर इन द एंड इट इज सीन अमंग लेबरर्स वर्किंग ऑन फार्म। जो फार्म पे काम करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम करते हैं, यही सब चेंजेस लोग को माइग्रेशन करना पड़ता है। द थर्ड वन इज दिस इज फोर्स माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन टेक प्लेस when people are forced to settle in a natural disaster like floods, earthquakes, etc. and man-made disaster like fire and war. So that forced migration, जब लोग क्या होता है माइग्रेट करने के लिए फोर्स होते हैं, बाउंड होते हैं, they are forced to migrate. This type of migration take place when people are forced to migrate, means forced to settle in a natural disaster. एक जगह से एक जगह जाने के लिए सेटल होने के लिए उन लोग को माइग्रेट करना पड़ता है। जैसे इस जगह पे बाढ़ आ गया, अर्थ का भूकंप हो गया, ये हो गया नेचुरल डिजास्टर से। और एक रीजन मैन मेड डिजास्टर लाइक फायर हो गया, वार हो गया, लड़ाई होता है, तो लोग एक जगह से और एक जगह फोर्स होते हैं, मजबूर होते हैं एक जगह के लिए माइग्रेट करने के लिए। सो दिस इज फोर्स माइग्रेशन। देन सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 3 हार्डशिप्स दैट द माइग्रेंट्स फेस। 3 क्या डिफिकल्टीज है, जो हार्डशिप्स है माइग्रेंट को फेस करना पड़ता है। आंसर्स, द माइग्रेंट्स फेस सेवरल हार्डशिप्स। बहुत सारा डिफिकल्टीज उनको सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एम्यूनिटीज। जो बेसिक एम्यूनिटीज होता है, मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होता है, वो सब जैसे लाइक फूड, शेल्टर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इस सब का प्रॉब्लम होता है। दे विल नॉट गेट एट द न्यू प्लेस एट द फर्स्ट टाइम। The second point is many migrants have to start begging as they do not get any work. जब उनको कोई काम नहीं मिलता, वो लोग माइग्रेट करते हैं जॉब पाने के लिए, बेटर जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं। बट ऐसे ही मैक्सिमम कभी ऐसा भी होता है कि उन लोग को जॉब नहीं मिलता है, तुरंत जॉब नहीं मिलता, तो उस टाइम तक उन लोग को क्या करना पड़ता है? एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर फैमिली, उनका फैमिली मेंटेन करने के लिए मैनी माइग्रेंट्स हैव टू स्टार्ट बेगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। And third one is the migrant women and have to work hard. जैसे खाली मेन काम नहीं करते हैं, उनके जो माइग्रेंट करते हैं उनके जो वुमेन भी होते हैं, वुमेन ग्रुप भी, एंड द वुमेन ग्रुप हैव टू वर्क हार्ड, उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट डू नॉट गेट एजुकेशन, सो दैट उस टाइम पे जब वो लोग सेट हो नहीं पाते हैं, माइग्रेंट्स सेट होने तक उनके जो चिल्ड्रन है दे हैव टू गो थ्रू ए हार्डशिप, दे डू नॉट गेट एजुकेशन। उनका कोई एजुकेशन नहीं होता है, वो लोग घूमते रहते हैं एक जगह, आवारा टाइप से वो लोग घूमते रहते हैं। सो दीज आर द few points that the migrant faced several hardships or the hardships. Next, third question is migration brings happiness to many people. ये जो माइग्रेशन होता है लोगों के जीवन में हैप्पीनेस लाता है, खुशियाँ लाती है। सो दैट एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स, या 2 एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग को करना है, आंसर देना है। सो दैट आंसर इज माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल। लोगों को खुशी देता है क्योंकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, प्लस उसके साथ एजुकेशन देता है, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी एंड ऑल्सो हेल्थ फैसिलिटी। इनकम लोगों का जब बढ़ जाता है तो लोगों का खुशी ही बढ़ेगा, खुशी होगा, उनके लाइफ में खुशी आएगा। इट गिव्स बेटर जॉब एंड एजुकेशन एंड देन इट इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द पीपल। लोगों का इनकम बढ़ जाता है, आर्थिक स्थिति में उन्नति होता है, डेवलपमेंट होता है। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सी न्यू प्लेस, एक नया जगह प्लेस देखने में, घूमने में उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। देन ऑल्सो दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। नया कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में एक नया जगह का उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है सीखने के लिए, जानने के लिए। नया फूड, जो भी वहाँ का जो खाना प्रोसेस रहता है उसको भी नए खाना खाते हैं वो लोग, ये भी एक हैप्पीनेस है। दे आर एबल टू लिव ए बेटर लाइफ इन फॉरेन लैंड पे वो लोग को बेटर लाइफ भी, अच्छा जीवन वहाँ
जीते हैं। सो ये सब है कुछ पॉइंट्स जो कि माइग्रेशन ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, लोग के जीवन में खुशियाँ लाती है। देन फोर्थ पॉइंट इज सपोज यू हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी। सपोज आपको एक नया सिटी पे जाना है, माइग्रेशन करना है, माइग्रेट करना है, टू माइग्रेट, सो दैट लिस्ट 2 प्रिपरेशन दैट विल मेक, दैट यू विल मेक। आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, एटलीस्ट 2 यहाँ आपको लिखना है, आंसर देना है। सो दैट कोई भी माइग्रेशन जब होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, व्हेन यू माइग्रेट टू अनदर सिटी, एक जगह से एक और नए जगह पे जाएंगे तो यू हैव टू मेक मेनी प्रिपरेशन, बहुत सारा प्रिपरेशन हमें करना पड़ता है। आउट ऑफ व्हिच 2 आर गिवन बिलो, अभी 2 पॉइंट आपको लिखना है बच्चे। सो दैट द फर्स्ट पॉइंट इज जो सामान है आपका, टोटल सामान को लेना पड़ेगा। सो दैट अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हाउस होल्ड थिंग, जितना जरूरत सामान है उसको लेके जाना पड़ेगा साथ में। सो दैट अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा, उससे सामान आपका हाउस होल्ड थिंग्स जा सके। द सेकेंड पॉइंट इज देन यू विल फाइंड ए सुइटेबल एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन। बस उस जगह पे, नई जगह पे जहाँ पे आपको तो फुटपाथ रहना नहीं है, एक घर भी लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। वो किससे रेंट पे लेके, पर एफोर्डेबल होना चाहिए, आप उसको एफोर्ड कर पाना पाए, कितना ना कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए आप उसका पेमेंट ना कर पाए। सो दैट इट इज़ ए सुइटेबल प्लेस, आप जहाँ जॉब करते हैं उसके आसपास होना चाहिए, सुइटेबल होना चाहिए, प्लस एफोर्डेबल होना चाहिए जो एकोमोडेशन लेंगे, एंड इन ए न्यू प्लेस। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। पहला क्या है, माइग्रेशन करने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा जो हाउस होल्ड थिंग्स को लेने के लिए। सेकेंड, उस नए जगह पे रहने के लिए और जो एकोमोडेशंस के लिए वहाँ एक सुइटेबल और एफोर्डेबल एकोमोडेशन के लिए नई जगह पे उसका भी व्यवस्था करना पड़ेगा, टू फाइंड सुइटेबल एंड एफोर्डेबल एकोमोडेशन। एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट फैसिलिटीज आर नीडेड बाय पीपल इन केस ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर टाइम पे लोगों को क्या क्या फैसिलिटी ज़रूरत होता है। सो दैट जब भी कोई विपत्ति होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उस टाइम पे लोगों का व्यवस्था टोटल अपना जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है। सो दैट व्हाट हैपन, द लाइफ ऑफ पीपल बिकम पैथेटिक हो जाता है लोगों का जीवन, जो लाइफ स्टाइल है। एंड व्हेन एवर ए डिजास्टर एंड वेदर नेचुरल और मैन मेड टेक प्लेस, ये नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड डिजास्टर हो, बट लोगों का लाइफ जो है पैथेटिक हो जाता है, डिजार्डर हो जाता है, सब चेंजेस हो जाता है। दे बिकम होमलेस, उनका घर, वो दे जो लोग होते हैं होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं इन सेकंड्स, कुछ सेकंड मिनट में, कुछ टाइम में, कम ही टाइम में वो बेघर हो जाते हैं। एंड सो दैट आफ्टर दैट आर फोर्स टू टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स, जो गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी एनजीओ के थ्रू जो भी रिलीफ कैंप खोला जाता है उस जगह पे उनको रहना पड़ता है। दे टेक शेल्टर इन द रिलीफ कैंप्स। देन द फैसिलिटीज दैट दे नीडेड है, तो क्या क्या फैसिलिटी उन लोग को जरूरी चाहिए, उस जगह पे उन लोग को क्या चाहिए, सेफ्टी पहना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज द सेफ्टी, द सेफ प्लेस टू सर्वाइव। उस जगह पे रहने के लिए वहाँ क्या करना चाहिए, उनको एक सर्वाइव करने के लिए एंड सेफ्टी प्लेस की ज़रूरत होता है, तो वही एक रिलीफ कैंप है उसी टाइम ही रहेगा, तो उसी जगह का ज़रूरत रहता है। देन सेकेंड रहेंगे तो बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होता है, जैसे कि सच एज फूड, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, क्लॉथेस, इस सब की ज़रूरत होता है। यही है 2 थिंग्स जो कि बेसिक जो हम लोग को डिजास्टर के टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर के टाइम लोग को ज़रूरत पड़ता है। सो दैट फिर रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, वंस रिपीट दिस क्वेश्चन आंसर। एंड व्हाट डिफिकल्ट फैसिलिटीज आर नीडेड बाय पीपल इन केस ऑफ डिजास्टर। द लाइफ ऑफ पीपल बिकम पैथेटिक whenever a disaster, whether it is natural or man-made take place, but they become homeless at the same time, not what, but they become homeless in seconds, कुछ मुहूर्त में वो लोग बेघर हो जाते हैं। एंड आर फोर्स टू टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप पे शेल्टर लेते हैं, सो दैट उस जगह पे क्या क्या फैसिलिटी उनको ज़रूरत पड़ता है। दे नीड आर सेफ्टी एट द सेफ प्लेस टू सर्वाइव, उस जगह पे सेफ्टी चाहिए पहला। एंड सेकेंड है द बेसिक एमिनिटीज सच एज फूड, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, क्लॉथेस, इस सब का जरूरत होता है। ओके, आई बिलीव एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करेंगे 3rd चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर। ओके।
Thank you for watching.